With this lecture, we start with unit number 3, which is monopolistic competition. This is lecture number 7 in the series, and 2 units have been completed. In even if you have not completed unit number 1 and 2, this unit is quite unrelated to them, and this carries 10% weightage. So now let's understand this very interesting unit, and only a section is there in your syllabus for this unit, a very small section of variant. So let's start. When we talk of market structure, what is a market structure? The kind of market we are in. Market structure can be of various kinds. For example, it can be perfect competition, it can be monopoly, it can be oligopoly, it can be monopolistic competition. So when we talk of market structure, the two extremes of any market structure are perfect competition and monopoly. Perfect competition is basically when there is so much competition in the market. Monopoly is where there is almost none competition in the market, only one producer. On the other hand, perfect competition, many buyers and many sellers are there in the market, and a lot of competition. So when we talk of perfect competition, the profits fall down to zero. The firms are producing at price is equal to marginal cost. Here in monopoly, there is supernormal profits and firms are producing at P greater than MC. In perfect competition, there is free entry and exit. In monopoly, the entry is restricted. Obviously, the entry is restricted. That is what is giving us supernormal profits. While in perfect competition, there is free entry and exit. In the long run, that ensures that our profits are normal. In case you want more details on these two structure of market, you can go through the other videos that will be there. But here the concern is looking into the monopolistic competition, which is a midway between these two markets. तो इन दोनों मार्केट्स का एक ज़रूरी नहीं है कि कोई भी मार्केट एक्सट्रीम एक परफेक्ट कंपटीशन होगी और कोई भी मार्केट एक एक्सट्रीम मोनोपोली होगी. In fact, the most of the markets that we witness in every day are monopolistic competition. For example, the market for soft drinks, Coca Cola, Pepsi, the market for your toothpaste, Colgate, Pepsodent, these are all monopolistic competition. So now what makes these markets, the markets that exist in everyday scenario, as monopolistic? How do we call this as monopolistic competition, and why are they so prevalent? How equilibrium is achieved in these kinds of market? This is what we explore. Point number 1. First feature of these monopolistic competition market is that there are large number of firms. इन दिस केस अगर नंबर ऑफ फर्म्स कम हो जाता है तो वो मोनोपोलिस्टिक नहीं, वो बन जाता है हमारी ऑलिगोपॉली. अच्छा, ये वाली जो एजम्पशन है ये किसकी है? ये परफेक्ट कंपटीशन की है. तो यहाँ पर ये एजम्पशन रिपीट होती है, द नंबर ऑफ फर्म्स आर लार्ज. वेरी ग्रेट. सेकेंड थिंग इज प्रोडक्ट इज डिफ्रेंशिएटेड. फॉर एग्जाम्पल, देर इज वन इंडस्ट्री. ओके, now within that industry there are a lot of n number of firms, right? When the number of firms are large in an industry, each firm is allowed to produce a differentiated product. So every firm is producing a different kind of product, so that means there is product differentiation. Does this happen in perfect competition? No, this doesn't happen in perfect competition. So it does not happen. Does this happen in monopoly? No, monopoly mein the monopoly is producing only a single product. Right now, it may have monopoly uh, with reference to legal monopoly, technology. We know that, but product differentiated ho ya now, we don't know. Maybe the process by which it is producing that product is different. That's why it has a monopoly. So we really can't compare this because only one product is produced in that. But इस case में जितनी भी फर्म्स हैं वो एक अलग तरह का प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही हैं. अब जब फर्म्स प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती हैं, अब क्योंकि माई फर्म इज प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट विच इज़ नॉट प्रोड्यूस्ड बाय एनीवन इन द मार्केट, तो उससे व्हाट विल हैपन? आई विल हैव कंट्रोल ओवर प्राइस. अगर मैं परफेक्ट कंपटीशन की बात करूं तो क्या फर्म्स के का कंट्रोल होता है प्राइस का? नहीं. इन परफेक्ट कंपटीशन, इफ यू नो व्हाट हैपेंस इज, this is the demand curve. This is the demand curve इन परफेक्ट कंपटीशन. तो इसमें क्या होता है? जो भी प्राइस सेट करा जाता है वो हर फर्म
गिवन लेती है, राइट। तो द डिमांड कर्व इज टेकन एज गिवन। ना डिमांडर्स का कोई वो है कंट्रोल प्राइस पे, ना सप्लायर्स का है। तो ये डिमांड कर्व ऐसे हॉरिजॉन्टल क्यों आ रहा है परफेक्ट कंपटीशन में? क्योंकि सेलर्स टेक दिस प्राइस एज गिवन, दे हैव नो कंट्रोल ओवर द प्राइस इन परफेक्ट कंपटीशन। बट जब मैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात कर रही हूँ, या कह लो मोनोपोली की बात कर रही हूँ, तो मोनोपोलिस्ट कंपटीशन में क्या हो रहा है, हम कुछ ऐसा डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट। तो अब क्या हो रहा है, मेरे पास कंट्रोल है, तो यानी कि मैं प्राइस अपनी मर्जी से चार्ज कर सकती हूँ। तो कोई भी प्रोड्यूसर अगर प्राइस अपनी मर्जी से चार्ज कर सकता है, सपोज वो इतना प्राइस कर चार्ज करता है, तो कितनी डिमांड होगी, इतने। अगर वो प्राइस अपना कोई भी प्रोड्यूसर कम कर लेता है, तो हमें पता है कि उस चीज़ की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। सो व्हाट विल हैपन इज वी विल गेट अ, in this case, a downward sloping demand curve, meaning firms have control over price in monopolistic competition. That is why demand curve is downward sloping. In order to increase the quantity it wants to sell, it will have to lower its price. So that means control over price मोनोपोली में होता है, ये मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन में नहीं होता। अब ये जो मार्केट पावर है, ये जो कंट्रोल है, ये किस वजह से आ रहा है? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की वजह से आ रही है। अब परफेक्ट कंपटीशन में बहुत सारी फर्म्स है, पर क्या प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड है? नहीं, द प्रोडक्ट इज होमोजीनियस। नेक्स्ट फीचर, अब बहुत सारी नंबर ऑफ फर्म्स है, क्या फ्री एंट्री एंड एग्जिट है मार्केट में? परफेक्ट कंपटीशन में हमें पता है दैट देयर इज फ्री एंट्री एंड एग्जिट, एंड मोनोपोली में देयर इज नॉट। बट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी हम एज्यूम करते हैं दैट देयर इज फ्री एंट्री एंड एग्जिट। तो जब भी कोई भी मार्केट में इजीली कोई फर्म आ जाती है या इजीली कोई फर्म चली जाती है, तो उससे जो इम्प्लीकेशन होती है वो ये होता है कि वो नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट्स का मतलब कि आपके जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो कवर होगा। वो क्या है, दैट्स इटसेल्फ अ डिफरेंट टॉपिक। बट व्हाट एसेंशियली मीन्स इज कि कभी सपोज करो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स है, सपोज देर आर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स किसी भी फॉर्म में, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स हो रहे हैं, तो नाउ व्हाट विल हैपन, एंट्री एंड एग्जिट क्योंकि फ्री है तो क्या होगा, एंट्री हो जाएगी। जब भी एंट्री होगी तो हमें पता है जब फर्म्स नंबर ऑफ फर्म्स ज़्यादा होगी, सप्लाई किसी भी चीज़ की बढ़ेगी, तो उस चीज़ का जो प्राइस है वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। जब किसी भी चीज़ का प्राइस कम होता है तो उस इंडस्ट्री के जो प्रॉफिट्स हैं वो भी कम हो जाते हैं। तो प्रॉफिट्स भी कम हो जाएंगे अगर किसी भी एंट्री की वजह से प्राइजेस कम हो जाएंगे। सो प्रॉफिट्स विल ऑल्सो फॉल इन एनी इंडस्ट्री। ना प्रॉफिट्स तब तक फॉलो करेंगे जब तक हमारे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स वाइप आउट नहीं हो जाते और हमारी इंडस्ट्री में सिर्फ फर्म कितना अर्न करती है, नॉर्मल प्रॉफिट्स। तो ये फ्री एंट्री एंड एग्जिट जो कंडीशन है उसकी एक इम्प्लीकेशन है। ये चीज़ परफेक्ट कंपटीशन में सच है, मोनोपोली में नहीं सच, और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी सच है। तो अगर हम चेक करें तो दिस थिंग इज ट्रू इन monopolistic competition. Differentiated products is true in monopolistic competition. Normal profits is not true in monopolistic competition. Control over price is true. Market power true. ये ट्रू। तो हम देखेंगे सिर्फ एक दो बॉक्स जो हैं वहाँ टिक परफेक्ट कंपटीशन से अलग हो रहे हैं। जैसे कंट्रोल नहीं है, ये दोनों मिसमैच है। उसके बाद डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स नहीं है, उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट्स नहीं है। No, there are, so there is free entry and exit in monopolistic competition. Therefore monopolistic competition में भी नॉर्मल प्रॉफिट्स हैं, ये भी आप में आगे जाके देखेंगे। तो सिर्फ दो तीन चीजें हैं जो डिफरेंट है, एक हमारा डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स हैं, एक कंट्रोल ओवर प्राइस है। परफेक्ट कंपटीशन से सिर्फ दो पॉइंट्स है डिफरेंस के, एक ये और ये। अगर मोनोपोली से कंपेयर करें तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ फर्म्स ही ज़्यादा नहीं है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मैटर ही नहीं करती। मोनोपोली बहुत सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न करिए, मेरी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन सिर्फ नॉर्मल करिए। कंट्रोल मोनोपोली का भी सिर्फ एक ये पॉइंट है जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और इसमें कॉमन है, सिर्फ एक पॉइंट है। लेकिन अगर परफेक्ट कंपटीशन हम देखेंगे तो काफ़ी सिमिलर है, एक्सेप्ट दैट कि यहाँ पर प्रोडक्ट जो है डिफरेंशिएटेड है, जिस वजह से फर्म हैज़ कंट्रोल, जिस वजह से जो डिमांड कर्व की जो शेप है मोनोपोलिस्टिक में वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है और परफेक्ट कंपटीशन में डाउनवर्ड स्लोपिंग नहीं है। सो नाउ लेट्स ट्राई एनालाइजिंग मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मोर विद सर्टेन एग्जांपल्स। हम सबसे पहले कोका कोला का एग्जांपल लेते हैं जो बुक में भी दी है। अब कोका कोला की मोनोपोली है अपने प्रोडक्ट पे, फॉर एग्जांपल मैं कोका कोला हूँ, तो उस केस में मेरी जो फर्म है
वो ये कोका कोला नाम को यूज करेगी। अब कोका कोला नाम को कोई सपोज करो मेरी जैसी ड्रिंक भी बना लेता है, कोका कोला भी बना लेता है, वो उस ब्रांड का नाम कोका कोला नहीं रख सकता। ओनली आई कैन यूज द ब्रांड नेम कोका कोला। देन अगर हम दूसरे फर्म्स की बात करें, पेप्सी, मिरांडा, लिम्का, ये जो ड्रिंक्स हैं राइट, ये कोका कोला की क्लोज सब्स्टिट्यूट्स है। मतलब ये सब बना सॉफ्ट ड्रिंक ही रहे हैं, पर उसका फ्लेवर अलग है या उसकी पैकेजिंग अलग है, उसका नाम अलग है, उसमें भी फ्रिज एलिमेंट अलग है। फॉर एग्जांपल थम्स अप में काफ़ी लोग नोटिस करते हैं द फ्रिज इज मोर। सो ऑल्दो द रेसिपी माइट बी वेरी सिंपल बट द नेम इज डिफरेंट, द प्रोडक्ट इज स्लाइटली डिफरेंशिएटेड। सो फॉर एग्जाम्पल अगर इफ आई एम टुडे thirsty, it is a very hot summer, right? So now I go to buy Coca Cola. Coca Cola is not available. तो कोका कोला की जगह will I buy coffee or will I buy thumbs up? I will of course buy thumbs up and not coffee. Why? It is coffee is not a close substitute of Coca Cola, right? In summers, thumbs up is a very close substitute of Coca Cola. But the now there is product differentiation here. बट अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर कंज्यूमर्स कितने प्राइस सेंसिटिव है। अब फॉर एग्जाम्पल आई गो टू अ मार्केट, कोका कोला इज बीइंग सोल्ड फॉर 25 रुपीज एंड थम्स अप का सेम बॉटल इज बीइंग सोल्ड फॉर 20 रुपीज। सो अब जैसे ही आई गो, वन थिंग इज आई हैव अ स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस फॉर कोका कोला, बट जैसे ही मैं गई मैंने देखा थम्स अप भी ऑलमोस्ट क्या है, क्लोज सब्स्टिट्यूट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सब्स्टिट्यूट है, वेरी क्लोज सब्स्टिट्यूट है, और उसका जो प्राइस है दैट इज मच लोअर। सो आई एम प्राइस सेंसिटिव, व्हाट आई से इज व्हाई नॉट रिड्यूस द प्राइस, why not buy this and save rupees 5? Or suppose karo in a more relevant case I have to buy 5 bottles. Then it will be a huge saving if I buy thumbs up instead of Coca Cola, and in spite of the fact that the taste is almost same, just that I have a slight preference. तो इसमें देखो दो तरह के consumers होंगे जो बोलेंगे I will now buy thumbs up. Why? It is lesser in price. दूसरे तरह के कंज्यूमर्स होंगे जो बोलेंगे I will buy only Coca Cola because I have a strict preference for Coca Cola. So now these two segments get divided. One segment is price sensitive, the other segment is not price sensitive that much. So इसका मतलब ये है कि जैसे क्लोज सब्सिट्यूट्स है तो यानी कि दूसरे जो कॉम्पिटिटर है उसका प्राइस भी मैटर कर रहा है। कोका कोला, और क्योंकि थम्स अप का प्राइस सेम नहीं था, कोका कोला लॉस्ट सम कस्टमर्स। तो इसका मतलब ये है कि अगर मेरे राइवल का प्राइस 20 है और मेरा प्राइस 20 है, तो अगर मुझे अपनी बेसिकली अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा 25 पे कितने कस्टमर्स हैं इतना, 20 पे कितने कस्टमर है, ये एक्स्ट्रा कस्टमर है जो हो सकता है अब क्या थम्स अप खरीद रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि कस्टमर्स मेरी कोक ही खरीदे, थम्स अप ना खरीदे, तो मुझे प्राइस कम करना पड़ेगा। तो ये मीनिंग है कि प्रोडक्ट्स जब सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, क्लोज सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, तो कैसे कंपटीशन मार्केट में बढ़ जाता है, घटता नहीं है। सी नाउ लेट्स रीड, दीज आर द लाइन्स फ्रॉम योर बुक। ईच फर्म इन द इंडस्ट्री, इंडस्ट्री क्या है जिसमें पेप्सी है, ये सारी सॉफ्ट ड्रिंक्स है, प्रोड्यूसेस अ यूनिक प्रोडक्ट, सो द प्रोडक्ट इज यूनिक। कोका कोला इज अ यूनिक प्रोडक्ट, यूनिक ब्रांड नेम, एंड हैज अ लीगल मोनोपोली, कोका कोला और कुछ कोई भी नहीं प्रोड्यूस कर सकता, बट अदर फर्म्स ऑल्सो प्रोड्यूस सिमिलर प्रोडक्ट विच क्रिएट्स कॉम्पिटिशन। और कंपटीशन की वजह से क्या होता है, डिसीजंस ऑफ द कंपेटिटर्स मैटर। कंपेटिटर कौन है, थम्स अप है, लिम्का है, मिरांड, अदर सॉफ्ट ड्रिंक्स। तो ये जो कंपेटिटर्स हैं इनके डिसीजंस बहुत मैटर कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि ऑल दो मेरे पास मोनोपोली है कोका कोला में, कोका कोला का एक क्लोज सब्स्टिट्यूट है विच इज पेप्सी और थम्स अप। So that is why your demand curve is downward sloping. Demand depends on price and quantity decisions of other firm. हमारे एग्जाम्पल में थम्स अप था। अदर फर्म्स प्रोड्यूस क्वाइट आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स, डिमांड कर्व ओके। सो अब ये जो डिमांड कर्व है इसको ये एनालाइज करते हैं कि किन सिचुएशंस में ये डिमांड कर्व थोड़ा ऐसे ज़्यादा फ्लैट होगा, किन सिचुएशंस में ये फ्लैट स्टीपर होगा। फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट जो है,
वो बहुत ज्यादा है। अब क्या होगा, जरा सा हमने प्राइस अप करा तो हमारा जो लॉस होगा वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। वाई बिकॉज व्हाट इज हैपनिंग इज कि क्लोज सब्स्टिट्यूट्स है, मैंने जरा सा प्राइस अप करा, लोगों ने स्विच कर लिया क्योंकि और क्लोज सब्स्टिट्यूट्स है। जरा सा प्राइस मैंने कम करा, उसी तरह लोगों ने क्वांटिटी बहुत ज़्यादा से बढ़ा ली। तो जब नंबर ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट्स बहुत ज़्यादा रहते हैं तो डिमांड इस केस में फ्लैट होती है, या तो उसकी जो इलास्टिसिटी होती है वो हाई होती है, और या तो नंबर ऑफ फर्म्स इतनी ज़्यादा नहीं है, पर जो टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स वो प्रोड्यूस कर रहे हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। तो इन दिस केस योर डिमांड कर्व विल बी रिलेटिवली मोर फ्लैटर। दिस इज पॉइंट नंबर वन। एज कंपेयर टू द अदर केस, जब नंबर ऑफ फर्म्स बहुत कम है, कंपटीशन थोड़ा सा कम है, क्लोज सब्स्टिट्यूट ज़्यादा नहीं है, तो इस केस में क्या होगा, जब आप प्राइस कम करोगे तो जो लॉस इन कस्टमर्स हैं, क्वांटिटी बढ़ेगी पर इतने से नहीं बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि क्लोज सब्स्टिट्यूट्स नहीं है, जो कस्टमर्स दूसरा थम्सअप कंज्यूम कर रहे हैं उनकी प्रेफरेंस बहुत ज़्यादा है थम्सअप की। दोनों थम्सअप और कोका कोला में बहुत ज़्यादा फर्क है। तो इस केस में हमारा जो डिमांड कर्व है वो क्या होगा, स्टीपर होगा, राइट। और यूजुअली हम स्टीपनेस को इलास्टिसिटी से कंपेयर करते हैं, ऑल दो वन वन रिलेशनशिप नहीं है, बट देन ऑल्सो। जस्ट अ मिनट। सो दिस वाज अबाउट कि कब फ्लैट होगा कब स्टीप हो। जब क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं तो डिमांड कब फ्लैट होगा, और जब नहीं अवेलेबल तो स्टीपर होगा। तो वी कैन से दैट इलास्टिसिटी जो है फर्म की वो क्लोज सब्स्टिट्यूट से डिसाइड होती है, एंड दैट ऑल्सो शोज कि कितनी मार्केट पावर है। फ्लैट मीन्स लेस मार्केट पावर, स्टीपर कर्व मीन्स मोर मार्केट पावर। नाउ सपोज वी नो अनदर कंडीशन हम एग्जिस्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं, दैट इज देर इज फ्री एंट्री एंड एग्जिट। तो हम डिस्कस करते हैं अगर एंट्री होती है या एग्जिट होती है तो डिमांड कर्व कैसे चेंज होता है। सबसे पहले अगर एंट्री हो रही है किसी और फर्म की तो नाउ डिमांड कर्व विल शिफ्ट लेफ्टवर्ड फॉर अ इंडिविजुअल firm. Why? Because some portion of the customers will be taken by the new firms. So one thing is demand curve will shift इनवर्ट। दिस इज पॉइंट नंबर वन। सेकेंड, डिमांड विल बिकम मोर फ्लैटर। हमने जब डिस्कस करा कि जितने ज़्यादा क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हैं तो डिमांड का फ्लैटर भी होगा, तो वो एक लेफ्टवर्ड भी शिफ्ट होगा और उसका जो कर्वेचर है वो भी चेंज होगा। तो फॉर एग्जाम्पल पहले हमारा डिमांड कर्व ऐसा था, तो एक तो लेफ्टवर्ड भी शिफ्ट हुआ और उसका कर्वेचर भी चेंज हो गया, राइट। ऐसा ये हमारा न्यू डिमांड कर्व बन गया। और या तो ऐसा भी हो सकता है, हमारा न्यू डिमांड कर्व कैसा बन गया, ऐसे, राइट। सो एक लेफ्टवर्ड भी शिफ्ट हुआ और अब एक फ्लैटर भी हो गया। सो दीज आर द टू थिंग्स दैट वी विल नोटिस। और अब सपोज करो फर्म्स कब एंटर करेंगी। देखो कोई भी इंडस्ट्री में अगर प्रॉफिट्स नॉर्मल है यानी जीरो है तो एंट्री एंड एग्जिट नहीं होगी। बट सपोज हमारी इंडस्ट्री में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स हैं तो दैट मीन्स एंट्री होनी स्टार्ट हो जाएगी। सीइंग दो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स, एंट्री विल स्टार्ट। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स is something that firms earn over and above their opportunity cost, right? So that means firm they will start entering. अब what will happen when there will be entry? तो किसी भी चीज़ की जो सप्लाई है वो बढ़ जाती है। सप्लाई बढ़ती है तो उसका प्राइस जो होता है वो क्या होता है, कम होता है। जब किसी भी चीज़ का प्राइस कम होता है तो उसके जो प्रॉफिट्स हैं वो भी कम हो जाते हैं, और प्रॉफिट्स तब तक कम होंगे जब तक नॉर्मल प्रॉफिट्स अचीव नहीं हो जाते। सो इससे ये सब चीज़ें डिस्कस करके हम इक्विलिब्रियम की कुछ कंडीशंस डिस्कस करते हैं। These are the three conditions for equilibrium. Each firm is selling at a price and output combination on its demand curve. So finally जो पॉइंट चूज होगा, तो सपोज दिस इज द डिमांड कर्व, तो कोई भी फर्म प्राइस और आउटपुट इस डिमांड कर्व पे चूज करेगी जो फाइनल इक्विलिब्रियम होगा, विच इज ऑब्वियसली कोई भी इक्विलिब्रियम विल बी ऑन दिस पॉइंट। सेकेंड, ईच फर्म इज मैक्सिमाइजिंग इट्स प्रॉफिट गिवन द डिमांड कर्व। ये जो फाइनल इक्विलिब्रियम है ये कैसे चूज होगा, द फर्म विल मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स। ऑफ कोर्स जब हम मोनोपोली की भी बात करते हैं, परफेक्ट कंपटीशन की भी बात करते हैं, प्रोड्यूसर थ्योरी में कोई भी जो प्रोड्यूसर है उसका मोटिव क्या होता है,
maximizing profits. So first point key, they are maximizing their profits and choosing any one point on demand curve. Point number 3, तब तक एंट्री होगी जब तक नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं. नॉर्मल प्रॉफिट्स मीन सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स इज इक्वल टू जीरो. सो तब तक एंट्री होती रहेगी होती रहेगी. सो ये 3 पॉइंट्स जब फुलफिल हो जाएंगे इक्विलिब्रियम के, तो हमें फाइनली इक्विलिब्रियम कैसा दिखेगा? ऐसा. वाई ऐसा? बिकॉज दिस इज योर ए आर कर्व, दिस इज ए सी इज टेंजेंट. अगर हम इस पे, इस डिमांड कर्व पे हमारा एक पॉइंट आ गया जहां पर प्राइस और क्वांटिटी का कॉम्बिनेशन है. अब इस पॉइंट पे जो हमारे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स हैं वो जीरो हैं. वाई? बिकॉज इन दिस केस इफ यू फाइंड प्राइस इनटू क्वांटिटी माइनस टोटल कॉस्ट, this will come out to be zero in this case. So there are no super normal profits in this case. और ये तब होगा, और ये कंडीशन कैसे इंश्योर होगी? दिस इज ड्रिवन बाय फ्री एंट्री एंड एग्जिट. लेट्स सी हाउ. फॉर एग्जांपल, हमारा जो इनिशियल इक्विलिब्रियम था वो ये था. अब ए आर कर्व पे एक पॉइंट है प्राइस और क्वांटिटी, राइट? और ये हमारा एवरेज कॉस्ट कर्व है, राइट? तो अब इस प्राइस और क्वांटिटी में अगर हम प्रॉफिट्स देखें तो यहाँ पर एक सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स है. एक मिनट, जस्ट अ मिनट. ये दिस वाज योर एसी. तो ये क्वांटिटी पे अगर हम एवरेज कॉस्ट निकालें, दिस इज दिस. सो दीज आर योर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स एट दिस. ये so the minimum has to be this, AC has to be this. So these are your super normal profits. Now इन profits को देख के क्या होगा? There will be entry of other firms. Now entry will happen. So suppose entry happens and हमें पता है AR will shift leftward and flatter. So it will keep shifting leftward and flatter until all the profits are wiped out. That is this situation. जब डिमांड कर्व ऐसे है AR और AC ऐसा है, तो यहाँ पर क्या है? AR is equal to AC and super normal profits are zero. So this will be ensured by the third condition of equilibrium. And at the end, demand and AC will be tangent to each other. अब ये जो जीरो प्रॉफिट की जो कंडीशन है जो इंश्योर हो रही है फ्री एंट्री एंड एग्जिट से, इसको हम ब्रेक इवन पॉइंट भी बोलते हैं. दिस इज द पॉइंट फॉर प्रॉफिट मैक्सिमम एंड ऑल्सो ब्रेक इवन पॉइंट. क्योंकि इसके अलावा अगर कोई पॉइंट है जहां पर प्राइस इज ग्रेटर देन एसी तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स है, एंट्री हो जाएगी. और प्राइस इज लेस देन एसी है तो क्या होगा? लॉस हो रहा है, कोई भी फर्म ऑपरेट नहीं करेगी और एग्जिट हो जाएगी. सो एंट्री एंड एग्जिट जो है वो इंश्योर करेंगे कि ब्रेक इवन प्रॉफिट हो रहा है. दैट इज ओनली नॉर्मल प्रॉफिट्स आर अचीव्ड. Now, next point is this situation a Pareto efficient situation? Now, to understand this point, you need to understand the meaning of Pareto efficiency that you can refer in the old lectures. So the point is वाले चीज में हम Pareto efficiency तब बोलते हैं अचीव हुई है जब प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट. सो दिस इज द कंडीशन फॉर Pareto efficiency. बट अगर हम इस केस में देखें, ये हमारा AR है, ये हमारा AC है और हमारा जो MR है वो हेयर है. सो ये प्राइस चूज कैसे हुआ है? MR इज इक्वल टू MC. ये जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, ये जो हमने रैंडम प्राइस देखा है, इसमें एक्चुअल में MR और MC इक्वल हो रहा है और फ्री एंट्री एंड एग्जिट बहुत सब शिफ्टिंग भी हो रही है कर्व. अगर मैं शॉर्ट टर्म में देखूं जहां पर कोई फर्म्स एंट्री एग्जिट नहीं कर रही, तो यहाँ पर इस तरह से ये प्रॉफिट जो है वो अचीव हो रहा है. अब इसमें व्हाट वी आर कंसिडरिंग इट कि MR इज इक्वल टू MC जब होता है, हमने ये मोनोपोली में भी देखा था. दिस वॉज द इनएफिशिएंसी ऑफ मोनोपोली, दैट प्राइस वॉज नॉट इज इक्वल टू MC. MR is equal to MC and we know that price is not equal to MR and not equal to, price is also not equal to MC in this case. That means it is inefficiency. तो अब यहाँ पर ऑथर पॉइंट आउट करता है कि ऑल्दो प्रॉफिट्स जीरो हैं बट दैट डज नॉट इंश्योर कि परेटो एफिशिएंसी है, क्योंकि प्राइस इज स्टिल ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट. सेकेंड पॉइंट, दूसरा पॉइंट जहां यहां एफिशिएंसी नहीं है क्योंकि एक्सेस कैपेसिटी है. एक्सेस कैपेसिटी बेसिकली क्या होता है? एक होती है एलोकेटिव एफिशिएंसी, एक होती है टेक्निकल एफिशिएंसी. तो यहां पर हम ये देखते हैं कि जब यहाँ है तो मिनिमम पॉइंट क्या है एसी का? अगर कोई भी फर्म ज्यादा प्रोड्यूस करती तो उसका एवरेज कॉस्ट तो कम हो रहा था, बट वो क्योंकि सिर्फ कम प्रोड्यूस कर रही है तो ये जो डिफरेंस है
इसको हम बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आइडल क्वांटिटी। और ये जो एक्चुअल क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही है, इन दोनों का जो डिफरेंस है, एक्सेस कैपेसिटी क्या होती है, मिनिमम एसी पे जो क्वांटिटी प्रोड्यूस होती है माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। तो इस वाले जो डिफरेंस है इसको हम बोलते हैं एक्सेस कैपेसिटी। सो व्हाट इज हैपनिंग एक्चुअली मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, ना तो परेटो एफिशिएंसी है, व्हाई, बिकॉज प्राइस इज नॉट इज इक्वल टू एमसी, एंड सेकंड इज एसी इज नॉट मिनिमाइज, देयर इज एक्सेस कैपेसिटी। सो नाउ द सॉल्यूशन फॉर दिस इज दैट अगर इस चीज में कम फर्म्स होती, सपोज करो, तो ऑब्वियसली हर फर्म का जो क्वांटिटी होती वो ज्यादा होती। कम फर्म्स होती तो जो हमारा एआर है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता, तो हर फर्म जो है वो ज्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रही होती। जब हर फर्म ज्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रही होती तो यहाँ एक्सेस कैपेसिटी की प्रॉब्लम सॉल्व होती। जो प्राइस था और जो एमसी का डिफरेंस था, प्राइस माइनस एमसी का जो डिफरेंस है वो कम होता, राइट, और ये होता। सो बट ऑन द अदर हैंड, अगर हमारी नंबर ऑफ फर्म्स कम है, एफिशिएंसी तो अचीव हो रही है, ये वाली परेटो इन एफिशिएंसी जा रही है, ये वाली भी एफिशिएंसी अचीव हो रही है, बट ऑन द अदर हैंड जब कम फर्म्स होंगी तो प्रोडक्ट वैरायटी भी तो कम होगी। और यहाँ पर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का जो मेजर फीचर है वो ये है कि क्योंकि नंबर ऑफ फर्म ज़्यादा है तो लोग, कस्टमर्स आर बेटर ऑफ, वाई, बिकॉज दे आर गेटिंग अ वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट। सो इन दिस केस व्हाट वी एनालाइज वाज कि एक तो नॉर्मल प्रॉफिट्स का जो कंडीशन है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, वो परेटो एफिशिएंट नहीं है। क्यों परेटो एफिशिएंट नहीं है, बिकॉज प्राइस इज ग्रेटर देन एमसी, और पी माइनस एमसी इज द मेजर ऑफ दिस इनएफिशिएंसी, राइट। सेकंड, हमारा मिनिमम ऑफ एसी पे हम नहीं प्रोड्यूस कर रहे, तो यहाँ पर हमारी एक्सेस कैपेसिटी है। तो ये दोनों जो हैं वो इनएफिशिएंसी का पॉइंट है। अब इसको खत्म करने के लिए अगर फ्यूअर फर्म्स हों तो हर फर्म जो है वो ज्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस कर सकती है। फॉर एग्जांपल थम्स अप की प्रोडक्शन ही बंद हो जाए तो कोका कोला का जो क्लोज जो सब्स्टिट्यूट है वो क्या बचेगा, मिरांडा और लिम्का, राइट। सो इस केस में क्वांटिटी बढ़ जाएगी, जब क्वांटिटी बढ़ेगी तो प्राइस माइनस एमसी का जो डिफरेंस है वो भी कम होगा, ये वाली जो इनएफिशिएंसी है ये भी कम होगी, और हम एसी जो है वो भी हमारा रिड्यूस होगा। तो यानी ये दोनों जो इनएफिशिएंसीज है वो कम होगी अगर नंबर ऑफ फर्म्स जो हैं वो कम है। बट ऑन द अदर हैंड उसका क्या कॉस्ट है, फ्यूअर फर्म्स का क्या कॉस्ट है कि फ्यूअर चॉइसेस, और कस्टमर्स जो हैं दे वैल्यू वेराइटी। तो वेराइटी जो है इकोनॉमी में, प्रोडक्ट वेराइटी इज फॉलिंग। सो दिस वर द पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स। नाउ इस केस में हम वी ऑफन से दैट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात करें ना अगर हम, तो ये अप्रोच तो कर रही है परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। क्यों अप्रोच कर रही है, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट्स हैं और हमने देखा कि सारी जो एजम्पशंस है ऑलमोस्ट सेम है। बस तो ओनली डिफरेंस इज कि देर इज अ प्राइस, देर इट इज नॉट, इट इज इनएफिशिएंट एज कंपेयर टू परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन एफिशिएंट है और ये इनएफिशिएंट है। अब ये जो इनएफिशिएंसी है इसका सिर्फ एक ही फायदा है, दैट इज प्रोडक्ट वैरायटी, जो कि हमारे परफेक्ट कंपटीशन में नहीं है। तो अगर हम परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को कंपेयर करें तो व्हाट विल बी देयर, दोनों में नंबर ऑफ फर्म्स लार्ज है, दोनों में नॉर्मल प्रॉफिट्स है, ऐसा नहीं है प्रोड्यूसर्स को भी बहुत फायदा हो रहा है, दोनों में फ्री एंट्री एंड एग्जिट है। लेकिन प्रॉब्लम ये है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में फर्म्स के पास पावर है प्राइस सेट करने की, जिसकी वजह से इनएफिशिएंसी अराइज कर रही है मार्केट में, बट उसका फायदा क्या है, प्रोडक्ट वैरायटी मिल रही है। तो अगर हमें कभी भी चूज करना है कि कोई भी जो प्रोडक्ट, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होना चाहिए परफेक्ट कंपटीशन, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कंज्यूमर्स वैरायटी से कितनी सेटिस्फैक्शन डिराइव करते हैं, तो क्या उस वैरायटी की ज़्यादा वेटेज है
या तो ये इनएफिशिएंसी की ज़्यादा वेटेज है। अगेन जो तुम्हारा सोशल वेलफेयर जैसे हम फंक्शन कंस्ट्रक्ट करते थे, तो उसमें किस चीज़ को सोसाइटी ज़्यादा वैल्यू दे रही है, वेराइटी को या इनएफिशिएंसी को। सो दैट वाज ऑल अबाउट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. This finishes your unit 2. That was all 10% weightage. But kindly don't miss the chapter, small chapter, and you can get good marks by just doing this much and the numericals as well, of course. So that was all. Thank you.